हमास इजराइल समझौते पर बवाल। संयुक्त राष्ट्र संघ में क्रेडिट को लेकर सवाल। भारत ने ट्रंप के क्रेडिट को लेकर सवाल किए। एक तरफा क्रेडिट लेना ठीक नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। इस समय दुनिया को एक तरह से हाँकने वाले ट्रंप अपनी दुनिया में मस्त है और जैसे वो है ठीक वैसे ही वो दुनिया को हाँकने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया के सबसे झूठे आदमी का खिताब भी पा चुके हैं। ये बात हम नहीं, दुनिया कह रही है और इसका कारण है कोई भी काम हो उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ वही लेना चाहेंगे। नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का इतना भूत सवार है कि पूछना नहीं। 54 बार कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान युद्ध उन्होंने रुकवाया है, लेकिन भारत कह रहा है कि ये बात झूठ है। ठीक उसके बाद पिछले हफ्ते ट्रंप ने कहा कि हमने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वो तेल खरीद बंद कर दे। फिर विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के पीएम से ट्रंप की बात नहीं हुई है और हम रूस से तेल खरीद जारी रखेंगे। कि मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई कल। See, on the issue of energy sourcing, we have made a statement. This was put out in the morning today. We would request you to look at that particular statement for the questions that you have. On the question of whether there was a conversation or a telephone call between Prime Minister Modi and President Trump, I am not aware of any conversation. तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। इससे ये साबित होता है कि ट्रंप से बड़ा झूठा कोई नहीं। उसी कड़ी में हमास इजराइल के समझौते को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में चर्चा हो रही है और भारत भी इस बैठक में शामिल था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश ने गाजा में शांति और फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का पक्ष रखा। Madam President, India thanks Russia for convening the open debate on the situation in the Middle East, including the Palestinian question. I also thank the briefer for her remarks. Today's open debate comes in the backdrop of the Gaza Peace Summit at Sharm el-Sheikh on 13th October 2025. India participated in the summit and we welcome the signing of the landmark peace agreement. It is India's hope that the positive diplomatic momentum that has been generated would lead to lasting peace in the region. At this juncture, India would also like to place on record its appreciation for the United States and especially President Donald Trump for playing an instrumental role in forging the agreement. Further, India also commends the role of Egypt and Qatar towards achieving this end. India remains firm in the view that dialogue and diplomacy and the two-state solution are the means to achieve peace. The landmark initiative of the US has generated diplomatic momentum towards peace, and all parties must adhere to their obligations in this regard. We also remain firmly opposed to any unilateral moves by parties concerned. Now is the time for all parties to support ongoing peace efforts rather than to derail them. India's position is firmly rooted in its consistent stance on the developments in 7th October 2023, as well as the overall Palestinian question. India has clearly condemned terrorism, stressed that there must be an end to destruction, despair, and suffering of civilians, and sought the immediate release of all hostages. It held that humanitarian assistance, particularly food, fuel, and other necessities, must flow into Gaza in an unimpeded manner and emphasized the need for a ceasefire. India envisions the peace agreement as an enabler and a catalyst in this regard. तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं भारत के राजदूत। हरीश कह रहे हैं कि हम रूस का धन्यवाद करते हैं। अब हम जानकारी देते चले कि हरीश ने शर्म अल शेख में भारत को उम्मीद है कि इस कूटनीतिक पहल से क्षेत्र में स्थायी शांति आएगी। अमेरिका की सराहना करते हैं जिन्होंने इस समझौते को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस समझौते के लिए उन्होंने कतर और मिस्र के योगदान अहम रहे। साथ ही हरीश ने कहा कि जिसे जो समझना है वो समझे। भारत देश को मानना है कि बातचीत से ही शांति आ सकती है। ऐसे में सभी पक्षों के द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करना चाहिए और किसी भी एक तरफा कदम से पूरी तरह से बचना चाहिए।
इसे आप समझ सकते हैं कि कैसे संयुक्त राष्ट्र में भारत ने हमास इजराइल समझौते पर अपना पक्ष रखा है। इस समझौते को लेकर ट्रंप अकेले क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन भारत का रुख 7 सितंबर से अब तक के घटनाक्रम पर था। अक्टूबर 2023 के साथ पूरे फलस्तीन प्रश्न पर भी चर्चा हुई। भारत ने आतंकवाद की निंदा की है और नागरिकों के विनाश, निराशा और पीड़ा का अंत करने पर जोर दिया और कहा कि सारा क्रेडिट एक ही आदमी ना रखे, बल्कि सभी लोगों की मेहनत से ही ये सब सफल हुआ है।